Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are fine. So welcome back to my channel Educational Corner. So as you are aware that we have completed lesson number 10, Living Creatures Exploring Their Characteristic from our class 6th Science NCERT book Curiosity. I hope all of you have watched all the previous videos of this chapter, that is part 1, part 2 and part 3. If you haven't, please watch them. Let us now move ahead with this chapter and do summary and question answers today. So I'll give you a brief summary quickly that what we have done in part 1. Part 1 we have learned about living and non-living things and their characteristics. Part 2 we have learned about the germination and conditions which are important for germination. Then in part 3 we have learned about the life cycle of plant as well as life cycle of some of the animals. Now we'll proceed further with the summary, the some of the points and the question answers, that is the back exercise of this lesson. So let's get started. Summary key points. The objects around us can be categorized into two types, living and non-living. Okay, so this you already know that the objects which are around us, whether you are sitting in a room, whether you are sitting in a class, wherever you are sitting, whether you are sitting in a park, so जो भी ऑब्जेक्ट्स हमारे पास हैं इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है. द एसेंशियल फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स आर दैट दे मूव, ईट, ग्रो, ब्रीथ, एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, रिप्रोड्यूस एंड डाई. Absence of any of these features indicate that they are not living beings. So हमारे essential features क्या है living beings के? ठीक है कि they can move कर सकते हैं, eat खा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं, ब्रीथ सांस लेना, एक्सक्रीट करना, देन एक्सक्रीट मीन्स टू release the waste product from our body, then respond to stimuli, we respond to stimuli, then reproduce and die. ठीक है. अगर इनमें से कुछ भी एब्सेंस है, मतलब कुछ भी नहीं है हमारे अंदर, कुछ भी चीज ऐसी है, ऐसा फीचर है जैसे मूव नहीं कर सकता या ईट नहीं कर सकते, तो इट इंडिकेट्स दैट वी आर नॉट द लिविंग बीइंग्स. ईच लिविंग बीइंग गोज थ्रू सेवरल स्टेजेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ. हर लिविंग बीइंग जो है वो सेवरल स्टेजेस के थ्रू जो है वो अपनी लाइफ में एक सेवरल स्टेजेस के थ्रू ही बढ़ता है. Germination of seed depend upon availability of water, air and suitable light and or dark conditions. So सीड की जर्मिनेशन, एक सीड की जर्मिनेशन हमने पढ़ा था, इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वाटर, एयर, सुटेबल लाइट या फिर डार्क कंडीशन. ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड्स रूट्स जनरली ग्रो डाउनवर्ड वाइल शूट ग्रो अपवर्ड. ये हमने पढ़ा था कि सीड्स की जर्मिनेशन के टाइम पे रूट जो है वो डाउनवर्ड ग्रो होती है और शूट जो है अपवर्ड ग्रो होती है. A plant's life cycle starts with seed germination followed by several stages of its growth and development. तो लाइफ एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल है वो सीड जर्मिनेशन से शुरू होकर क्या करती है, फॉलो करती है कि क्या स्टेजेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. These include flowering and seed production, जिससे कि फ्लावर से वो फ्रूट में चेंज होता है, फिर वो और आगे सीड प्रोडक्शन होती है. Seeds produced during their life cycle would germinate into new plants and the cycle continue. तो seeds जो life cycle में germinate होते हैं वो new plants बनाते हैं आगे, और फिर ये cycle जो है वो continue रहती है. So this is about the plant life cycle which we have already studied. The life cycle of an animal as a result of reproduction begins with a newborn that undergoes various stages of growth and development, followed by an adult stage and finally death. The process of reproduction maintains the continuity of its kind. तो एक एनिमल की जो लाइफ साइकिल है वो कैसे चलती है आगे, बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन की वजह से ही न्यूबॉर्न को वो ग्रो कर पाता है और डेवलप कर पाता है. ठीक है. फाइनली एक अडल्ट बन जाता है और फाइनली उसके बाद क्या होता है, लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है. ठीक है.
तो दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है? ताकि वो अपने काइंड को मतलब अपनी तरह को मेंटेन कर सके, कॉन्टिन्यूटी कर सके। मॉस्किटो पास थ्रू द स्टेजेस ऑफ एग, लावा, प्यूपा एंड अडल्ट। ये हमने पढ़ा था कि मॉस्किटो की 4 स्टेजेस हैं, पहले एग, उसके बाद लावा, फिर प्यूपा एंड देन फाइनली अडल्ट मॉस्किटो। द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग इंक्लूड, फ्रॉग की लाइफ साइकिल में क्या है? एग, टैडपोल, फ्रॉगलेट एंड अडल्ट। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था। एग्स को बोलते हैं स्पॉन, टैडपोल में क्या क्या था, क्या क्या पढ़ा था हमने? टैडपोल with tail and then with hind legs, then froglet and then finally adult frog. In some living beings such as mosquitoes and frogs, significant changes occur during the various stages of their life cycles. These changes can be seen in body shape, structure and sometimes even in the habitat. तो कई लिविंग बीइंग्स जैसे मॉस्किटो, फ्रॉग, इनकी जो लाइफ साइकिल है इनमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, और ये चेंजेस जो है वो बॉडी शेप, स्ट्रक्चर और कई बार उनकी हैबिटेट जहां वो रहते हैं उसकी वजह से भी हो सकते हैं। ओके, सो दीज वर द some of the key points of the lesson, that is the summary. Now we'll proceed further with the question answers, or you can say the back exercise of the lesson. Let us enhance our learning. List the similarities and differences in life cycles of plants and animals. तो लाइफ साइकिल प्लांट की और एनिमल की किस तरह सिमिलर है और किस तरह क्या डिफरेंसेस हैं वो लिखना है हमें। ठीक है, देखो सिमिलैरिटीज में क्या लिखा है? बोथ प्लांट एंड एनिमल्स अंडरगो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। तो अपनी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए दोनों ही प्लांट और एनिमल जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। बोथ हैव डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, फॉर एग्जाम्पल जर्मिनेशन ऑफ सीड, फ्लावरिंग इन प्लांट्स, एग, प्यूपा, अडल्ट्स इन एनिमल्स। इनके जो है वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, सब दोनों के ही हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि एक प्लांट में अगर हम बात करें तो सीड जर्मिनेट होती है, फ्लावरिंग इन प्लांट्स हो सकता है। ठीक है, और जब हम एनिमल्स की बात करें तो एग, लावा और अडल्ट्स हमें नजर आते हैं एनिमल्स में। तो दोनों में ही स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की। देन डिफरेंसेस, फॉर रेस्पिरेशन एनिमल्स यूज लंग्स और गिल्स व्हाइल प्लांट्स यूज स्टोमेटा। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए एनिमल्स क्या यूज करते हैं? लंग्स और गिल्स, और प्लांट्स यूज करते हैं स्टोमेटा विच इज प्रेजेंट ऑन दी लीव्स। A plant life cycle start with seed germination while animal life cycle begin with a newborn. प्लांट की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? एक सीड की जर्मिनेशन से, एक बीज के बोने से हम कहते हैं कि एक प्लांट जो है इससे ग्रो हो जाएगा। ठीक है, और एनिमल की लाइफ साइकिल किससे स्टार्ट होती है? इट बिगिंस विद द न्यूबॉर्न, जब न्यूबॉर्न पैदा होता है। Question number 2. The table on the next page shows some data. Study the data and try to find out examples appropriate for the conditions given in the second and third columns. If you think that an example for any of the conditions given below is not possible, explain why. ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है, आपको एग्जाम्पल डालना है साथ में, और साथ में रिमार्क डालना है कि क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे क्या है? डज इट ग्रो? नो। डज इट रिस्पायर? तो ऐसा एग्जाम्पल डालना है ना जो तो ना तो ग्रो हो सकता है और ना ही रिस्पायर कर सकता है, जैसे बुक। ठीक है, रिमार्क क्या है? कि ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, अब आपने एक ऐसी चीज डालनी है जो ग्रो नहीं कर सकती बट रिस्पायर कर सकती है, सांस ले सकती है पर ग्रो नहीं कर सकती। तो ऐसी कोई चीज ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ भी नहीं डालेंगे, डैश डाल देंगे। नेक्स्ट है ग्रो करे पर रिस्पायर ना करे, मतलब ग्रो तो कर रही है पर सांस नहीं ले सकती। ठीक है, अब जैसे देखो सैंड ड्यून्स जो है वो ग्रो करते हैं पर वो सांस नहीं ले सकते। ठीक है क्या ये? नॉन लिविंग। अब ऐसी चीज डालनी है जो ग्रो भी करती है और रिस्पायर भी करती है, मतलब ग्रो भी कर रही है, सांस भी ले सकती है। कैट, डॉग, कुछ भी डाल सकते हो। ह्यूमन बीइंग, ठीक है, लिविंग थिंग, ये क्या है? लिविंग थिंग। तो रिमार्क में हम डालेंगे लिविंग। क्वेश्चन नंबर 3. You have learned that different conditions are required for seed germination. How can we use this knowledge for proper storage of grains and pulses? ठीक है,
आपको पता है कि कुछ कंडीशंस रिक्वायर्ड है सीड जर्मिनेशन के लिए। सीड जब हम जर्मिनेट करते हैं तो उस टाइम पे क्या कंडीशंस रिक्वायर होती है, एयर, वाटर, ठीक है, और समटाइम्स सनलाइट ऑल्सो, ठीक है, और डार्क और लाइट प्लेस, ठीक है। तो इस नॉलेज को कैसे हम यूज करें कि हमें जो ग्रेन्स और पल्सेस रखने हैं उनके प्रॉपर स्टोरेज के लिए। स्टोर इन अ कूल प्लेस, सबसे पहले तो जो आप ग्रेन और पल्सेस हैं उनको प्रॉपर कूल प्लेस पे रखो। कीप इन अ ड्राई एनवायरनमेंट, यूज अ एयर टाइट कंटेनर, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और ड्राई एनवायरनमेंट में रखना चाहिए हमें उसे, ताकि वो गीली ना हो। एंड स्टोर देम इन कूल प्लेस, ठीक है, कूल प्लेस में उसको रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, you have learned that a tail is present in tadpole, but it disappears as it grow into a frog. What is the advantage of having tail in the tadpole stage? ये आपको समझाया था मैंने जब आपको लेसन एक्सप्लेन किया था कि एक टैडपोल जो है ना उसकी टेल प्रेजेंट होती है जब वो टैडपोल होता है, बट वो धीरे धीरे जब फ्रॉग में, अडल्ट फ्रॉग में ग्रो होता है तो वो डिसअपियर हो जाती है। तो उसका क्या एडवांटेज है टेल होने का टैडपोल स्टेज पे? जो टैडपोल स्टेज पे जो टेल होती है ना वो हेल्प करती है डायरेक्शन चेंज में और स्विम करने में, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट, द टेल हेल्प्स इन स्विमिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस वाइल स्विमिंग। वो जब स्विम करते हैं उस टाइम पे टेल जो है वो स्विमिंग में हेल्प करती है और बैलेंस मेंटेन करने में भी हेल्प करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन इन वाटर, वाटर में जब वो स्विम करते हैं उस टाइम पे डायरेक्शन चेंज करने में भी उनकी हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 5, Charan says that a wooden log is a non-living thing as it cannot move. Charu counters it by saying that it is a living because it is made up of wood obtained from trees. Give your arguments in favor or against the two statements given by Charan और चारू। चरण क्या बोल रहा है कि वुडन लॉग जो है नॉन लिविंग थिंग होती है, क्यों? क्योंकि वो मूव नहीं कर सकती, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चारू बोलती है कि ये लिविंग है, क्यों? क्योंकि ये ट्रीज से मिलती है हमें वुड। तो आप किसके फेवर में जाएंगे और किसके अगेंस्ट जाएंगे उसके लिए आपने यहाँ पे आंसर लिखना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर, अब हम फेवर में कैसे बोलेंगे? देखो फेवर में हम बोल सकते हैं कि इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, वुडन लॉग कैन नॉट मूव, मूव भी नहीं कर सकता, रिस्पायर भी नहीं कर सकता, मतलब सांस भी नहीं ले सकता, ग्रो भी नहीं कर सकता। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, और इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड भी नहीं करता, तो ये एक नॉन लिविंग थिंग है। बट अगर हम फेवर में जाते हैं किसके, कि अगर हम बोलते हैं कि चारू सही बोल रही है, तो इन फेवर ऑफ वुडन लॉग इज अ लिविंग थिंग, वुडन लॉग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज विच आर लिविंग थिंग्स। तो अगर हम दोनों उसके फेवर में जाते हैं तो हम ये बोलेंगे कि ठीक है ये लिविंग थिंग है, क्यों? क्योंकि ये हमें एक लिविंग थिंग से ही मिली है, ट्रीज से मिली है, इसलिए ये लिविंग। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विश फीचर्स इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो एंड फ्रॉग? सिमिलैरिटी बतानी है एक तो आपने कि मॉस्किटो की लाइफ साइकिल में और फ्रॉग की लाइफ साइकिल में क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो सिमिलैरिटी, सबसे पहले दोनों एग से शुरू होते हैं। बोथ बिगिन लाइफ एज एग्स, बोथ हैव लावा स्टेज, दोनों में लावा स्टेज भी है। डिफरेंस क्या है? मॉस्किटो में देखो स्टेजेस क्या है, एग, लावा, प्यूपा और अडल्ट, बताया था। अडल्ट मॉस्किटो कैन नॉट लिव इन वाटर, ठीक है, डिफरेंस ये है। अडल्ट मॉस्किटो कैन सर्वाइव फॉर 10 to 15 डेज, इतने टाइम तक ही सर्वाइव कर सकता है। फ्रॉग स्टेज क्या है? देखो स्टार्ट तो एक से होती है, सेकंड स्टेज आ जाती है टैडपोल, फिर आती है फ्रॉगलेट और फिर आती है अडल्ट, ठीक है। अडल्ट फ्रॉग कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, तो ये डिफरेंस आ गया। एक तो क्या डिफरेंस आ गया कि अडल्ट मॉस्किटो जो है वो वाटर में नहीं रह सकता, अडल्ट फ्रॉग जो है वो दोनों में रह सकता है, वाटर में भी और लैंड में। अडल्ट मॉस्किटो कितना टाइम सर्वाइव करता है? 10 to 15 डेज। अडल्ट फ्रॉग सर्वाइव करता है 10 for 14 वीक्स, ठीक है। सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a plant is provided with all the conditions suitable for its growth. Draw what you expect to see in the shoot and the root of the plant after a week. Write down the reasons. एक प्लांट है जिसको आपने सारी कंडीशंस जो सूटेबल थी ग्रोथ के लिए, मतलब आपने एयर, वाटर, देन सनलाइट वेयर एवर इट इज पॉसिबल, देन यू हैव गिवन ऑल दी नेसेसरी कंडीशंस, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो शूट और रूट जो है उस प्लांट की आफ्टर अ वीक, आपको आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या और रीजन क्या लिखोगे इसमें?
Expected observation, shoot grows upward towards the light and new leaves will spread out. ठीक है, शूट तो अपवर्ड की तरफ ग्रो होगी और जिस तरफ लाइट है उस तरफ ही न्यू लीव्स भी हमें उसमें अपीयर होते हुए नजर आएंगी. रीजन, शूट ग्रो टुवर्ड्स लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस. रूट ऑफ प्लांट ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल. तो आपको बताया था लेसन पढ़ते वक्त भी, रूट हमेशा डाउनवर्ड की तरफ नजर आएगी, शूट्स हमेशा अपवर्ड की तरफ नजर आएंगी. क्यों? क्योंकि दे ग्रो टुवर्ड्स द लाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, let's come to the next question. Tara and Vijay set up the experiment shown in the picture figure 10.10. What do you think they want to find out? How will they know if they are correct? तारा एंड विजय ने एक एक्सपेरिमेंट किया. देखो फिगर 10.10 दी है ना हमें, 3 यहाँ पर बीकर्स दिए हुए हैं. ठीक है, अब वो क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं और कैसे पता लगेगा कि वो करेक्ट है या नहीं है. देखो, Tara and Vijay want to find in which direction root and shoot of a plant would grow and move if plant is placed inverted or along the ground. ठीक है, तारा एंड विजय क्या फाइंड करना चाहते हैं कि शूट और रूट किस डायरेक्शन में ग्रो होंगी और कहाँ मूव होगी अगर एक प्लांट को इन्वर्टेड प्लेस कर दे, उल्टा प्लेस कर दे या फिर ग्राउंड के साथ प्लेस कर दे. They will know if they are correct if the shoot always grow upward towards light and root grows always downward into the soil. उनको कैसे पता लगेगा कि वो सही है? कि शूट हमेशा, मैंने आपको बताया कि अपवर्ड ग्रो होती है लाइट की तरफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और रूट हमेशा ग्रो होती है डाउनवर्ड सॉइल के अंदर. ठीक है, सो लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. Design an experiment to check if temperature has an effect on seed germination. आपको एक एक्सपेरिमेंट बनाना है ये चेक करने के लिए कि क्या सीड जर्मिनेशन जो है वो टेम्परेचर क्या इसके लिए इम्पोर्टेंट है सीड जर्मिनेशन के लिए. देखो, टेक 2 बाउल्स एंड लेबल देम एज A and B. आपने 2 बाउल्स लेने हैं, उसमें A and B उनको लेबल करना है. प्लेस सम ग्राम सीड ऑन वेट कॉटन वूल इन ईच ऑफ द बाउल्स. आपने उसके अंदर ग्राम सीड डालनी है. ठीक है, और उसको वेट कॉटन वूल के अंदर आपको ग्राम सीड को डालना है. कीप बाउल ए एट रूम टेम्परेचर एंड बी बाउल इन रेफ्रिजरेटर. एक को तो रूम टेम्परेचर मतलब बाहर ही रखना है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, ए वाले बाउल को, और बी वाले को आप रेफ्रिजरेट करके अंदर रख दो फ्रिज के अंदर. यू विल ऑब्जर्व that the seeds in bowl A began to germinate in 1 or 2 days while the seed in bowl B do not germinate. ए वाले में आप क्या ऑब्जर्व करोगे, 1 या 2 दिन में आपने रूम टेम्परेचर पे रखा तो वो सीड जो है जर्मिनेट कर गई, उसमें से थोड़ा सा आपको नजर आएगा वो स्वेल हो जाएगी और वो सीड कोट स्वेल होकर जो है वो जर्मिनेट हो जाएगी. बट जो बाउल बी है उसमें जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं होगी. ठीक है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर. This experiment shows that suitable temperature is essential for seed germination. ठीक है, तो suitable temperature चाहिए seed germination के लिए. रूम टेम्परेचर पे वो जर्मिनेट होगी, बट वो अगर आप रेफ्रिजरेट कर दोगे तो जर्मिनेट नहीं होगी. So I hope you have understood all the questions, and this is the last question of this lesson. So now I will meet you in the next video with the important points of this lesson, which will help you further understand more and learn at the time of your exams. I'll also give you some of the important definitions in that video, so do kindly watch that video also. Please watch part 1, part 2, part 3 of this video, and then summary and question answers. And if you are liking my videos, please do subscribe my channel. Thank you so much. See you soon in my next video. Up till then, take good care of yourself. Goodbye.